Now let us start discussing about the income tax draft rule 2026. Because some of the friends in the last meeting have told that we should continue on this topic rather going for technical discussion. So considering his request into account, we'll discuss the same topic that in the progress in the income tax draft rule 2026. Uh, as you know, our legal team and you, all of you, have done a lot of great job. Initially, there are just some problems regarding grandfathering clause, RVOs, and the registration fees of 10,000. And we are not interested for getting the corporate to get registered in the income tax department. So I think the effort of all of you as well as our legal team gave us a great success, and the government of India has accepted our grandfathering clause. So now at present all the existing 34 AB valuers are needed to apply freshly. They have to renew it, but they are not to apply freshly, and they have not to pay rupee 10,000 as the registration fees. Then RVOs, there are just some entry of RVOs, and government has politely accepted your correspondence, and he has not in favor of RVO. That in taking of the membership of RVO will not be compulsory for all of us. Then we are one more demand was of our legal team. That was the Ministry of Finance should not register the corporate sector. Rather, it should be individual members. So I think all these things have been accepted. And as far as there is some mistake in 164, 169, that will also get deleted, because that has been that the existence of the 34 AB, I mean the RVO in the 169 form is due to the mistake of the that is a clerical mistake which will get deleted. So now all the 4 points which we have demanded, we can say suggested, have been accepted by the Government of India. So for this, I would like to thanks our legal committee. And I would like to legal committee from different states. We have different members, so I like to thank them. The team was led by Sugata as well as Anand. So I am sure they had done a tremendous job, and you had all of us have supported them. See, association, just I was recalling Ma Durga. See, Ma Durga, no god was in position to kill Mahishasur, but Ma Durga killed her. Then how she killed him? Because all the gods gave their weapons to Ma Durga, and therefore Ma Durga became much more powerful, and due to this, it became possible for her to kill Mahishasur. Similarly, don't, don't think that association has done something. This is you. You all gave your opinion by your representing, and by the drafted by our legal team headed by Anand Ajal Sugata, and which may give us a great success. And today we are in a stand that we have no grant. We have government have accepted the I mean grandfathering clauses. Then there will be no RVO. Then we have to know or run to the RVO for getting registered, and we have not to request them by get myself registered and paying the fees them. So this is also a very great job done by our legal team as well as all of you. Some of our members have taken the representation of their respective MPs, and they have forwarded to the respective departments. That was also a great job for all of us. Of course, we could not thanks all the MP due to some shortage of time, but after getting 100% success, I'm sure I promise all the members who had helped getting the representation from the MPs will meet them and will get a thanks and will honor them. Now only one thing is examination clause is there. Since actually examination clause is there because initially there is no provision in the draft rule. There is no provision of examination clause. It has come afterwards. I don't know why or from where it came, because in draft rule there is no existence of there is no provision of examination. Then who introduced it? This is a point of to be discussed. That to be we should be much more aware about that. In some 4 days back from association, we had sent one mail as well as the post. It has been posted in different groups, but it has been observed that some of our valuers, whoever may be, I don't know, he had done some cut and paste, and he had written that examination is mandatory as per the government rules.
So this is not, this is malpractice is not accepted, and you people should be get aware of that. And by way of that, what I'm feeling, what I'm information I'm getting by the way of examination, by fearing the values for appearing examination, some values are collecting a fees of rupees 6,500 per member, telling that if you take our classes, then no doubt you will pass very quickly or in one time. See, you should not get trapped with such type of values. They are no doubt they are selfish. We are working honestly, and just as a member, see, we cannot say these things to all of our values throughout India. But since you are our member, so this becomes a responsibility of ours to inform our members not to follow such practice, and don't believe that the post what has been posted different of the different boards. So at present, of course, we have not get any relaxations in the examination. Still, then all of you are trying, all of you are representing that we should not, government should not accept exemption from all of us, because after 10 years of degree, we become eligible for getting registered income tax. Then after eligibility, it takes 1 to 2 years to get registered in the Ministry of Finance. After getting in the registration income tax, we become eligible for MPL banks. And this also takes 1 to 2 years. That means after getting a degree, after 14 years of getting degree, we become eligible to practice as a value on the different banks. So that is our experience. So no one can say that 34 AB are not are fearing for appealing exam. That is not so. Our target is, our the stand is that examination will not at all give or update the valuers. Rather, we should join technical seminar as well webinar that will update it. Now suppose All India Value, I think in India we are the first association who provides technical webinar each and every month. That is, our time is fixed, our date is fixed, and without any taking any payment, we are carrying out this webinar continuously without any stops. So I would also like to request on behalf of association that all our members should join the webinar, and such that they can be updated as far as technical knowledge is concerned. So this is what I like to say. So whatever out of 4, we cannot say 80%, 90%. Our demand was grandfathering clause, RVOs, then 10,000 rupees that registration fees. Number, no corporate sector, entrance of corporate sectors. All the 4 have been accepted by Government of India, and that is only due to all of you, and also of course our legal team. So I would like to thank our legal team as well as all of you who directly or indirectly had taken participation in this. And I will also thank all the MPs who had supported in this stand, and they had represented government so that it has also some impact. So I like to thank all MPs and all the friends who had taken the reference letter from the MPs and forward to the Government of India. And because of this only, we became successful. And hence, I would like to request all of you, only one thing is missing, that is exemption clause. Since that was not in the draft bill, that is there. And I do know all of you are trying for that, and I think all of you are also writing letter to Government of India to consider this, because we should not go for any examination. We are not fearing. We have a lot of knowledge and we have a lot of experience. So experience is much more important, which counts for it, not passing the examinations. So only one thing left out, the Inform 169, the existence of RVO, that is by mistake by the government, that will be deleted, and hence you should not be worried about that. Only thing, examination for which you are appearing, we are applying to the Government of India. I am sure government will accept the proposal of all of ours, and it will be a very beneficial to all of us. Now I will to thank you all, and I would like to request our legal team to inform the members what you have done so far. Of course, I would like to request them not to tell anything about the examination, because in the examination we have represented, so they cannot say anything about the examinations. So they should not, in their point, they should talk only about grandfathering, RVOs, rupee 10,000, then no corporate sector. This we have got. Government have provided this. Since examination point we have not received, we have defended it. I think they will not be positioned to tell about that factor. So I request to remain out of that clause. Since all know we are trying, but what we got, they were requested to tell. Now I like to request our legal team head, Sugata Adula Anand. I'll also request all our members, because
our in legal team are members from Jhansi, Uttarakhand, then Sambalpur, then Raurkela, then from all cities we have our legal team. From Delhi also we have legal team members. So all the members of the legal team are requested to come forward and tell something, because they will have a lot of experience. From last 3 months they are working hard, so no doubt they will have experience. खट्टा मीठा सभी एक्सपीरियंस उनके पास होगा. मैं एक्सपीरियंस में बताता हूँ. ये एक्सपीरियंस हमारा सुगाता के लिए है. जब जिस दिन रात को 12 बजे लास्ट टाइम था इसको अपडेट करना है, तो हमें एक दोस्त उड़ीसा से था, संबलपुर से भी यहाँ ज्वाइन किए हुए, उनका नंबर हमें सुगाता को देना था. ओके, तो इसमें मेरा मिस्टेक क्या हुआ, मेरे को नींद रात को 12 मेरे को नींद आ रहा था, हमने 9 के जगह पे उसको 4 दे दिया. मतलब नंबर हमने एक डिजिट का मिस्टेक हो गया. तो सुगाता फोन रात को 12 बजे ही फोन दैट पर्सन, और उसे बेचारा गाली खाया क्योंकि वो नंबर उसका था नहीं. जब मैंने उसको हमको बताया तो मैंने देखा यार हमसे ही मिस्टेक हुई, तो हमारा मिस्टेक से सुगाता को भी गाली खाना पड़ा, तो इसलिए माफी चाहूँगा. लेकिन एक एक्सपीरियंस है. तो आई मीन टू से द टीम आईवा हैव डन ए लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे हैव डन ए लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द वैल्यूअर्स, एंड they are supposed to be very thankful to for all of us, because their hard labor brought us all these results. Thank you to all of you, and I like to request Sugata Ajlanan as well as all the legal team to come forward to tell something. After that, I will request all the members to suggest what can be done in future also. They will also tell. So Sugata and Anand, please come forward and tell the members what we have done from last 3 months. क्या क्या experience आपका रहा, like that. Okay, Sugata and Anand, please. आनंद सर, आप टीम को लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, तो प्लीज आप स्टार्ट कीजिए सर. आनंद सिंह सर. He has taken all the pain. सारी चीज को उनको सामने रख के किया गया था. इनफैक्ट आप सब लोग की हेल्प था इसमें. तो सबसे अच्छा लगा, मैं जुड़ने के बाद सबसे अच्छा बात तो दास बाबू के मुंह से एक बात सुना मैंने, ये माँ दुर्गा के उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए. क्लासिक एग्जाम्पल. अगर जी माँ दुर्गा के पास सारे 10 जो उनका जो भुजा है, मतलब हाथ है, उन पे अगर जी 10 शस्त्र नहीं होता तो उनके लिए लड़ाई करना कठिन होता. और ये सिंबॉलिकली बोले तो एसोसिएशन में जो रोल है ये माँ दुर्गा जैसा है. इसके अंदर जो सारे शस्त्र आप लोगों ने दिए, हम लोगों ने दिए, यानी कहने मतलब जो मेंबर्स है या नॉन मेंबर्स है, डिफरेंट जगह से, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट कॉर्नर से, उन्होंने डिफरेंट तरीके से असिस्ट किया. और ये जो हमारी एक्सपीरियंस रहा लास्ट 3 महीने से, जब से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2026, तब से अभी तक का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा. सारे चीज जुड़े, कई जैसे उन्होंने बताया, कई खट्टे मीठे हमारी जो एक्सपीरियंस रहा. अगर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे सामने टारगेट बहुत बड़ा है, और अभी भी एक टारगेट है जो कि एग्जामिनेशन क्लॉज, जिसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, बिकॉज दास बाबू ने सही कहा, बिकॉज हमने अभी रिप्रेजेंट किया, तो उस बारे में ज्यादा कुछ बोलने का हमारे पास कुछ है नहीं. कई सारी चीज ग्रुप में शेयर हो रहा है, कई सारी चीज पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, बट जो हासिल हुआ है उसके बारे में बात करूंगा मैं. मेरे को नहीं पता हम लोगों में से कितने लोग ये बात तो समझ में आ रहा है, जो चीज हासिल हुआ उसका जो अहमियत है वो कितनी बड़ा है. आप लोग को सबको पता है, ठीक, तभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट करूंगा इस चीज को. जो चीज हमने हासिल कर पाया वैल्यूअर्स में, क्या किसी के प्लेटफॉर्म से, मैं तो मानूंगा ये भारतवर्ष के सारे 30 वैल्यूअर्स जो है, जो इस बात को महसूस करते हैं, और हमारी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है या हमारी जो खुद की जो स्टैंडिंग है एज ए वैल्यूअर, एज ए प्रोफेशनल, उस पर गर्व या प्राउड महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है. सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो सबसे बड़ी बात यह था कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जो हमको हासिल हुआ, जो कि बेसिकली जो ड्राफ्ट रूल था उसके अंदर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज नहीं था. ड्राफ्ट रूल में ग्रैंडफादरिंग क्लॉज नहीं था, जो कि रिप्रेजेंट करने के बाद आफ्टर ए लॉन्ग बैटल ऑफ 1.5 months this have been added. Long battle and assistance by all corners of the society of 30 valuers for different parts of the country, चाहे हमारी मेंबर हो चाहे नॉन मेंबर. तो सबसे बात बड़ा ग्रैंडफादरिंग, हमारे दिमाग में ये बात आ सकता है, कई लोगों को तो शायद ये भी पता नहीं, बिकॉज उन्होंने बाद में जुड़े हैं हमारे इस मूवमेंट में. ग्रैंडफादरिंग होता या नहीं होता, उस पर क्या फर्क पड़ता है, कई लोगों को दिमाग में आ सकता है.
कि यार अभी भी तो हमको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों में फर्क क्या था। देखिए, पहली बात तो है ग्रैंडफादरिंग 34AB वैल्यूअर्स को मिलना, ये एक सम्मान है और ये एक रिकॉग्निशन है। जो हमारी जो इतनी लंबा सफर जारी करके आए, जो 34AB वैल्यूअर्स है, हमारी आगे का जनरेशन है, उसका आगे का जनरेशन है, 1957 से ये चल रहा है, आज अपन 2026 में खड़ा है। एक लंबा रास्ता तय करके हम लोग आए और उसके एक सम्मान दिया गया। ये एक सिर्फ एक वर्टिकल, एक IBBI का वर्टिकल 2016-17 में क्रिएट हुआ, उसमें बात नहीं करना चाह रहा हूं, बट इज द ओल्डेस्ट वर्टिकल एंड सिंगल ओनली वन वर्टिकल रिकॉग्नाइज्ड वर्टिकल एज ए वैल्यूअर इन इंडिया। इसको सरकार ने सम्मान दिया, इनको रिकॉग्नाइज किया कि भैया आप लोगों का योगदान है। जो चीज हमने मिस कर गया था जब वैल्यूअर्स कंपनीज एक्ट आए थे 2017 में 18 में, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं ये बोलूँ, ये सम्मान एक पहली बात नहीं है। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये क्या फायदा हुआ, क्योंकि हम एज ए वैल्यूअर हर टाइम चीज को तोड़ते हैं चीज को। ये है अभी भी हमको फॉर्म 169 जो रिवाइज होकर आएगा अभी, उस पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा विद अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स वी हैव आस्क्ड फॉर। बट इस पर मेन बात ये है, अगर जो फ्रेश एप्लीकेशन होगा, यानी जो लोग नॉन 34 वैल्यूअर्स है, जो फ्रेश एप्लीकेशन होगा, उनको मल्टीपल स्क्रीनिंग स्टेज से जाना पड़ेगा, मल्टीपल स्क्रीनिंग। और हमको केवल मतलब बेसिक स्क्रीनिंग है, यानी कहने मतलब वी मस्ट हैव गॉट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 34 and the KYC paper that is due to everybody, I think. So that is the basic benefit. यानी कहने मतलब है हमारी एप्लीकेशन इट इज ओनली प्रोसेस, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, हमको एप्लीकेशन देना है भाई, हमारी ये KYC है, ये हमारे एड्रेस है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, एक्सेप्ट 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 एंड वेरी वैलिड रजिस्ट्रेशन। मगर जो लोग फ्रेश एप्लीकेंट्स है, they have to go through a rigorous process and there must be and there will be several cases of cancellation, rejection, resubmission होगा। हमारे लिए जो 34 वैल्यूअर्स ग्रैंडफादर्ड है, उनके लिए सब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट होने से काम चल जाएगा। सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज। प्रैक्टिकल बात करता हूं, हमारी जल्दी हो जाएगा, हमको एप्लीकेशन जमा करना है, दैट्स इट। तो हमारी प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट में हो जाएंगे। अगर बाकी फ्रेश एप्लीकेशन है, उनका हो सकता है टाइम भी लगे एंड देयर माइट बी एलिमेंट ऑफ रिजेक्शंस ऑल्सो बिकॉज़ एनीथिंग। हमारी केस में एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन का चांस 0%। सब्जेक्टिव को हम लोग सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली सबमिट करेंगे, एक एडवांटेज पॉइंट है। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक थिंग जो 3480 का ग्रैंडफादरिंग मिलना या नहीं मिलना। ध्यान रखिएगा, 2017-18 में हमको ग्रैंडफादरिंग नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ, हम में से कई लोगों को एग्जाम देके और पूरा आरबीओ के प्रोसेस से जाके हमको IBBI का वैलिडेशन मिला। कई लोगों को मिला, कई लोगों की इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं किया, या कई लोग तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। हम 2017 तक हमको कंपेयर करेंगे, हमको समझ में आएगा कि हम 3480 वाला चीज फायदा क्या हुआ और नहीं मिलता तो क्या नुकसान। एक तो पहले, अब दूसरी जो मेजर जो चीज हासिल किया गया 3480 द्वारा, वो ये है आरबीओ। आरबीओ के बारे में ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। आप लोग सबको पता है व्हाट इज आरबीओ एंड हाउ देयर फंक्शन। तो इसका अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि एक बेसिक जो कंटिन्यूएशन है, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया था, इनका जो चेयरमैन थे सिलेक्ट कमेटी का श्री बजेंद्र पंडा साहब, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, पुराना वाला ग्रुप में, जहां पर इन्होंने एक बात जरूर कहा था कि बेसिकली वी बिलीव इन कंटिन्यूटी। हमने कोई मेजर चेंज नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूटी भी बिलीव कर रहे हैं। यानी 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था या 1962 का जो इनकम टैक्स रूल था, उनको ही कंटिन्यूएशन में 2026, 25 और 26 में किया गया। इसको स्मार्ट बनाया गया, कई प्रोविजंस हटाया गया, ऑब्सोलेट चीज हटाया गया, एक टिपिकल लैंग्वेज का हटाया गया। उसी के अंदर मैं बोलूंगा बेसिकली ये कंटिन्यूटी था, बिकॉज जो हमारे वेल्थ टैक्स वैल्यूअर है, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी दैट हैज बीन रिटेन इन द फाइनल नोटिफिकेशन इन 27 मार्च। तो उसी सिलसिले में क्या है, जो हमारी जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जो हमारी और सरकार के बीच में, सीसीआईटी के बीच में, सीबीडीटी के बीच में कोई इंटरफेस नहीं, जो कि ड्राफ्ट रूल में डाला गया था एज ए आरबीओ, यानी जिसका
सिंबॉलिकली बोल सकते हैं गेट कीपर, यानी आपका और हमारी और सीबीडीटी के बीच में गेट कीपर था जिसका नाम आरजी है, वो कंट्रोल करता, मॉनिटर करता, हमको विदाउट एनी मीनिंगलेस कंट्रोल, जैसे कोई मतलब नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट हमने सरकार के सामने रखे थे 20 मार्च के पहले, और सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, पर हाँ भाई जरूरत नहीं है, हमको आरबीओ का जरूरत नहीं है। दैट इज बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है सारे 30 वैल्यूअर्स की, जब सरकार, हम चाहते हैं हमारे जो बॉस हो, दैट शुड बी द प्रिंसिपल सीसीआईटी या सीसीआईटी या सरकार, गवर्नमेंट। हमारी और सरकार के बीच में किसी लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि एज ए 34 एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर अभी तक हम ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, और 514 में जब भी काम होगा तो भी इसी ढंग से काम होगा। सो ये तो बेसिक उपलब्धि है बेसिकली। बाकी आरबीओ हटने से हमारी जो मॉनिटरी बेनिफिट हुआ, हमारी जो टेक्निकल एप्लीकेबिलिटी बेनिफिट हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि पब्लिक डोमेन में से बात करना ठीक नहीं रहेगा, कि नेगेटिव लगे कई लोगों को, क्योंकि हमें से कई लोग आरबीओ से जुड़े होंगे, आईबीए किए होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लग सकता, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट आप खुद समझदार है, समझ जाएंगे कि आपको कितना एक्स्ट्रा एडिशनल मॉनिटरी बर्डन होता है हर साल के लिए, आपको हर साल के लिए मॉनिटरी बर्डन होता, जो कि हट गया बिल्कुल। पहली बात तो ये। तीसरी जो मोटा बातें हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 10,000 rupees may not be a big amount for us, but what I want to say, this is not a 10,000 rupees, that the processing fees has been waived by the government. मेरी पर्सनल ओपिनियन है या एसोसिएशन की ओपिनियन है, बाकी ऑफिस बेयरर्स का या जो लीगल कमिटी का, दिस इज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट बाय द गवर्नमेंट। जो वेल यू आर 35 वैल्यूअर्स, तो हमसे आप कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे, ये टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है। ये फर्दर कंसोलिडेट करता है हमारी स्टैंड को, हमारी पोजीशन को, हमारी रेस्पेक्ट को, जो कि हमको एज ए ग्रैंड हमको जो रेस्पेक्ट किया। तीसरी बात जो मैं कहा, चौथी बात एंड पांचवा बात जो दास साहब ने रिपीट किया, पहली बात तो ये है, जो ड्राफ्ट रूल था उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया, गेजेट नोटिफिकेशन, उसके अंदर इट इज क्लियर था, मोटा मोटा क्लियर था, जे यहाँ पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, मैंने दिस इज बेसिकली, अब दोबारा बता रहा हूं, कंटिन्यूएशन। ये जो हमारी जो 30 रजिस्ट्रेशन है, बेसिकली इंडिविजुअल नेचर है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए है, तो कहीं ना कहीं एक कोई डायकोटमी था इसमें एक्ट के अंदर, तो रूल के अंदर जो इस तरीके से नोटिफाइड हुआ था, जहां पर हमको लग रहे थे, लीगल टीम को लग रहे थे, ये बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कहीं ना कहीं से अंदर स्नेकिंग कर सकते या अंदर आ सकते। सरकार ने एक बात को 100% क्लैरिफाई कर दिया, ये सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप का जो चीज है, जो कि नॉन इंडिविजुअल नेचर है, पार्टनरशिप फॉर्म, इनको रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्टर कराने का अंडर सेक्शन 514 कोई इरादा नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस बात के लेकर कई लोग बहुत खुश हो रहे थे, कई बहुत ही जबरदस्ती खुश हो रहे थे, जब फॉर्म 169 के अंदर एक टाइपोलॉजिकल एरर या एडिटिंग एरर रह गया था, हड़बड़ी में होगा, किसी कारण से होगा, कोई भी कारण होगा, जहां पर आरबीओ का मेंशन पड़ा हुआ था, भाई आरबीओ का जिक्र किया हुआ था, तो लोग बस दूसरी बात की हो रहे थे, आरबीओ तो है, किसने कहा आरबीओ कर दिया, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और अनफॉर्चुनेटली इसी कारण देर हो रहा है, क्योंकि ये रिवाइज होगा, एक प्रोसेस है, वेरीफाइड हो गया सब कुछ, टाइम लगता है हर चीज में, ये तो प्रोसेस, तो वो 169 भी अपना हो गया। तो कुल मिलाकर मैं ये समराइज करूंगा, ये जो एक छोटा सा एग्जामिनेशन क्लॉज वो दास साहब ने जरूर आप लोगों को इंडिकेट किया है अभी, इसके अलावा सारे चीज हमको हासिल हुआ है, सारे हासिल हुआ है, और ये हासिल इसलिए हो पाया कि सारे भारतवर्ष से मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूअर्स सपोर्टेड दिस। मैं तो ये बात कहूंगा, छोटा सा बात बोल के मैं खत्म करूंगा, ये सपोर्ट हमको कितना मिला नहीं मिला, कितना लोगों ने सपोर्ट किया, नंबर डज नॉट मैटर है, पर मैटर करता है हमारी ये सब ऐसा इसके अंदर सक्सेस मिला है। और मैं ये बात बोल के खत्म करूंगा कि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े इश्यूज आए हैं और आएंगे भी एज ए वैल्यूएशन प्रैक्टिस में। अगर ये सब लोग जुड़ जाए, सारे 30 वैल्यूअर्स पूरा भारत से जुड़ जाए, तो हमारी ताकत कितना हो गया सोचिए। सारे एसोसिएशन जुड़ जाए, सारे ईगो को सब कुछ को डिसाइड करके जुड़ जाए, सब कुछ छोड़ के, तो हमारी कितनी बड़ी ताकत होगा, हम कितने बड़े स्ट्रॉन्ग लॉबी बन सकते हैं 30 वैल्यूअर्स या ग्रैंडफादर वैल्यूअर्स अंडर 514। ये सोचिए थोड़ा सा, यही तो खत्म में। बाकी सारे जो लोग जुड़े नहीं इस मूवमेंट से, उनको भी बताइएगा क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ। ये फॉरगेट, लेट अस फॉरगेट इट, किसने हासिल किया इसमें,
हमने क्या किया, लीगल टीम ने क्या किया, दानलोक ने क्या किया, AIB ने क्या किया, बाकी एसोसिएशन क्या किया, हम मानते हैं इसको ये उपलब्धि है हमारी सारे 34 बिरादरी। और ये बात आपको जरूर बाकी दोस्तों को बताना चाहिए कि हमने क्या हासिल किया। थैंक यू सर। Thank you, Sugata. So you people have done a tremendous job. So now I like to Anand. I think here there, but if anybody want to tell something, please come forward. कुछ लोगों ने केस फाइल कर दिया था इसके अगेंस्ट मदुरई हाई कोर्ट में। उसकी हियरिंग हो गई थी और उस हियरिंग का रिजल्ट जो ऑर्डर है उन्होंने रिजल्ट दिया रखा था स्टे लेने के लिए, जिसमें तमिलनाडु वैल्यूअर एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश वैल्यूअर एसोसिएशन, कर्नाटक वैल्यूअर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ वैल्यूअर्स ऑफ इंडिया ने 5-6 लोग थे जिन्होंने उठा के इकट्ठे जो फाइल करी थी मदुरई हाई कोर्ट में। और उसकी हियरिंग होके जो उसका ऑर्डर रिजर्व है शायद 14th डेट लगी है, जो कमिंग 14th है। ये सिर्फ मुझे बता एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। बट एक्चुअली थिंग इज दैट अभी एग्जामिनेशन का कोई तो हम लोग रिपेंड ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए हाई कोर्ट से भी मतलब ही नहीं। अभी तो हाई कोर्ट तभी जाया था आदमी जब हम रिपेंड करें, वो सरकार मना करे तो हाई कोर्ट बात है। अगर कहीं पे भी कोर्ट जाते हैं, व्हेनेवर वी गो टू कोर्ट, लेट फॉर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड गन, लखनऊ हाई कोर्ट हैड गन, HPMB, we had represented our problem to the bank authority, and when bank authority did not listen us, then we went to court. Now since we are applying for the government, requesting them not to consider, not to impose the exemption clause, government has not issued till now. So we should not, whoever has gone to the court, it is not wrong. Because हम पहले जिनसे शिकायत है उनसे शिकायत करें, अगर वो न माने तो कोर्ट जाए। दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द protocol. So unless or until government refuses, no, we will not accept your examination clause, you have to appear for the examination, then we can go for court. Without that, if South Association is anybody gone, I think that is not the right way. Because the government can say, now the members are representing us and we are considering the fact, then how can you go to court today and how can you challenge it? The challenge will be done only that whenever government will refuse, now all of us have to appear for the exam. Then we can go to court. If I am telling Sugata, please, am I right? हाँ सर, मैं तो ये बात कहूंगा, मेरे को ये डेवलपमेंट पता नहीं। थैंक यू हरिओम गिरी साहब, मेरे को कुछ खबर तो था, कुछ हल्का सा हिंट था इस बारे में, बट मैं वाज नॉट श्योर दैट ऐसे मतलब आप जो बता रहे हो तो ऑब्वियसली आई माइट हैव ए सॉलिड कंक्रीट एविडेंस। बट इस बारे में मेरा जो ओपिनियन ऐसा है, आई डोंट नो हाई कोर्ट की क्या नतीजा आएगा तो मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या देंगे। बट मैं एक बात जरूर समझता हूँ, शुरू से जो एसोसिएशन की बोले जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, उसकी पॉलिसी हम लोग पॉलिसी लेकर चले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पहले हम सरकार से बात करेंगे, हम डिफरेंट चैनल से चैनल के थ्रू सरकार से बात करेंगे। जब बैक चैनल बात या फोर चैनल बात हमारी फेल हो जाएगा, तब हम सेकंड ओपिनियन सोचेंगे, सेकंड ऑप्शन सोचेंगे, जो कि कुछ भी हो सकता। तो मैं इस बारे में मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है, या हमारी लीगल टीम का ओपिनियन बहुत क्लियर है। मैं लीगल टीम की तरफ से बोलना चाहूंगा, ये सब ऐसा है जब सरकार हमारी दाबी मान रहे, बात सुन रहे हमारे, तो किसी चीज को अचानक सबजुडिस करने से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा इसको सबजुडिस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो शुरुआत में ही बात चला था जैसा वैसा है, हम वो ग्रैंडफादरिंग और ये सब नहीं देंगे, सरकार की तरफ चले जाएंगे। बट पीपल आर वेटिंग फॉर द गेजेट नोटिफिकेशन। तो गेजेट नोटिफिकेशन में जब हमको मिल गया सब कुछ, तो उसके अंदर हमने देखा भैया एग्जामिनेशन क्लॉज आ गया, और साथ में दो चीज और रह गया था, जिस बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट वाली बात है, और दूसरी तीसरी जो है वो ना फॉर्म 169 का जब करेक्शन नहीं हुआ था उसकी बात है। इन तीनों चीज को इमीडिएटली रिप्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर सरकार ने दो चीज को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किए थे, जिसका चिट्ठी अब सोशल मीडिया में देख रहे हैं, घूम रहा है, जो कि 7 तारीख को 8 तारीख को दास साहब ने इसको जारी किया था AIJ के ग्रुप के अंदर। बट समहाउ बाद में इनको
अलग तरीके से तोड़ मोड़ के एक पोर्शन उठा के इसको 2 दिन पहले घुमाया गया सोशल मीडिया में, जो कि मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लोग अपनी विजडम के हिसाब से अपने काम कर रहा है। देखिए क्या होता है, दास साहब ने 4 चिट्ठी डाले थे, 4 डॉक्यूमेंट थे, उसमें से एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्टिवली उठाया गया। क्या मतलब है, आप वैल्यूअर के बेनिफिट पे काम कर रहे हो, हित में काम कर रहे हो, एगेंस्ट में काम कर रहे हो। दास बाबू ने केवल एसोसिएशन की तरफ से यही किया गया, तो वो भी सबसे डिस्कस करके, पूरा टीम से डिस्कस करके, ये सारे इंडिया के वैल्यूअर्स को पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसी स्टेटस की जानकारी देने के लिए सारे चीज को एज ए डॉक्यूमेंट, कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट तो है नहीं। ये जो चिट्ठी घुमाया जा रहा है, अभी जो जवाब आया था जिंदल साहब की वहां से, है ना, जो साहब ये 8 तारीख को AIGA का ग्रुप में पोस्ट किया गया था दास बाबू के द्वारा, 8 अप्रैल को पोस्ट किया गया था। नथिंग न्यू, उस दिन तो कोई बातें नहीं हुआ इसमें। अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो 3 जवाब आया था, जिसमें 2 पॉजिटिव जवाब था और एक नॉन कंक्लूसिव जवाब था एग्जाम के बारे में, हमने उसको इमीडिएटली उसको रिप्रेजेंट किया एंड काफी अच्छा एडवांस स्टेटमेंट है अभी। तो क्या स्टेटमेंट है उसमें बात नहीं करूंगा, दास साहब ने सही बात कहा, जैसे बात करने से मतलब नहीं है। बट मैं दोबारा मैं कोर्ट वाली बात पे आऊंगा। जैसे ही आप कोर्ट पे जाएंगे सर, एक बात समझे, मैं आप सुन लीजिए, आपसे बात करूंगा मैं अभी, तो मैं फिनिश कर दूंगा। देखिए कोई चीज बातों में जो सोल्यूशन निकल सकते ना, लड़ाई झगड़े में सोल्यूशन नहीं निकलता है। और एक बात मान लीजिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सरकार से लड़ाई करेंगे। हम तो पहले सरकार से पास जाकर बात करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, हमारी बात रखेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। सरकार जिस दिन बोल देगा गेट लॉस्ट, मैं आपकी बात नहीं सुनना करेगा, उसकी बात हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज द वे। दूसरी बात, जैसे हम कोर्ट पे जाएंगे, जिस सज्जन ने गए हैं, बधाई हो उनकी, इन्होंने सरकार की नाक का इशू बना देंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं ना मैटर ऑफ प्रेस्टीज बना देंगे, इसको बना दिया उन्होंने, अभी बना देंगे। ये डेवलपमेंट सुनकर मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है। ग्रेहम गोली साहब ने जो अपडेट दिया हमको, मेरे पास थोड़ा हिंट तो था बट श्योर नहीं था मैं। तो मैं पर्सनली मानता हूँ जिस दिन सरकार इसको बोलेंगे कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या अच्छा दूसरी बात है, एग्जाम के बारे में दोबारा बोलना नहीं चाहूँ, तभी बता रहा हूँ, सरकार ने नहीं बोला एग्जाम देने पड़े, मैं बोला यूज की बात उसकी। आप लोग सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, उसका ना बोला नोटिफिकेशन आएगा तब सोचेंगे। और दूसरी बात, जबकि ना डिफरेंट ग्रुप्स में बार बार चल रहा है एग्जाम के बारे में, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी जगह अचानक कोर्ट चला जाना और इस चीज को सब्जुडिस बना देना और सरकार की नाक का बात बना देना। अब सरकार लड़ेंगे, सरकार बोलेंगे ठीक है भैया आप तो कोर्ट गए थे ना, जाइए कोर्ट से लेके आइए, जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारे लिए सॉल्यूशन जनरल देखेंगे आपको, ठीक है। एनीवे, मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि सरकार से हमारी जो बातें चल रहा है, सरकार से बातें हो रहा है, बहुत अच्छी स्टेज में है ना। और कोर्ट के बारे में मैं कोई कंप्लेंट कोई वो नहीं करूंगा, कमेंट नहीं करूंगा, मेरे कमेंट पढ़ने भी नहीं चाहिए। यार आउटकम आएगा कोर्ट का अभी मेरे को नहीं पता, हम लोग को किसी को नहीं पता। बट उन लोगों को बधाई हो जो लोग कोर्ट गए, किस सोच के गए, क्या सोच के गए, मेरे को नहीं पता, हो सकता भलाई के लिए गए होंगे, ठीक है ना। अगर उनकी सोच अगर रंग लाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी हम लोग बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू। मैं ये बात को थोड़ी बढ़ाना चाहूँगा। सुगता जी, आपको याद होगा कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया की वैल्यूअर्स को बुलाए थे इसी पर डिस्कशन करने के लिए, जिसमें करीब 100 के आसपास वैल्यूअर्स हमारे पास थे ऑल ओवर इंडिया से। तो सबके सुझाव से ये था कि हमारे जो है ना जॉइंट एक्शन कमेटी बने। तो फिर ये था कि हुआ था उसी कमेटी में ही बात हुई थी कि क्योंकि आईवा का पास मोस्ट स्टेट में आया कवर करता है। अब मैं बताऊँ, अभी हमारे पास 19 स्टेट से मेंबर है, 19 स्टेट, वी आर कवरिंग 19 स्टेट्स। ये बात हो रही कि मेंबर्स का नंबर कम हो, लेकिन वी आर कवरिंग 19 स्टेट्स इन इंडिया। तो ये था कि जहाँ पे हमारे पास मेंबर ज़्यादा होंगे वहाँ पे आईवा 3 मेंबर नॉमिनेट करेगा, और जो एसोसिएशन ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट की है तो ये एसोसिएशन को मेल आईडी से हम चिट्ठी भेजेंगे, वो भी 3 नाम नॉमिनेट करें, और जिनका नाम नॉमिनेट करेगा उनको हम अपना कमेटी बना लेंगे। ये सजेशन था जो तीनों चारों एसोसिएशन का नाम ली गई अभी, ये चारों एसोसिएशन को हम लोग चिट्ठी ऑफिशियली मेल में भेजा था कि आप जो भी नाम दोगे उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी आईवा अपना कमेटी अपना खुद बना लेगा। हाँ, और इसमें अपना टीम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो सोचे एक जॉइंट एक्शन कमेटी होगी। जो इतना बातें हुई और जब आपको बुलाया गया, आप जो कोर्ट गए, फिर आपको इसका पहले भी हमारा जो आईवा की, देखो मैं बताऊँ, सबसे 2 बड़ी गवर्निंग बॉडी हमारे पास है, एक तो आईवा काउंसिल है और एक आईवा लीगल कमेटी है। क्योंकि हमें डिले ना हो इसलिए हम उस दिन जॉइंट कमेटी मीटिंग बुलाई थी आईवा काउंसिल की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पावर काउंसिल के पास है और लीगल अथॉरिटी लीगल कमेटी की है।
तो इसलिए दोनों कमेटी बुलाया था कि आगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो अभी ये यूथ का मूड था, अगर हमें कोई मतलब यूथ में जाना है तो क्या करना, क्या पावर हमारे पास है। तो काउंसिल ने पूरा खुले पावर दे दिया था कि आप जब चाहो तब कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पॉलिसी शुरू से रही, क्योंकि काउंसिल ने कह दिया था तो फिर हमें दोबारा काउंसिल को बुलाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर सरकार हम बात न मानता तो फिर जो कोर्ट जाते तो हमारा 3 लोग ऑथराइज हो गई थी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट कि आप इसमें कोई भी डिसीजन लोगे, हमारा मना नहीं। तो ये चीजें पहले हम लोग शुरू से कर चुके थे, लेकिन हम गए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पॉलिसी कुछ दूसरा थी। तो उसी पॉलिसी के माध्यम से वी गॉट सक्सेस इन 4 पॉइंट्स। तो उम्मीद है कि दूसरा जो पॉइंट है विल ऑल्सो गेट सक्सेस, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग इट। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोर्ट जाने से पहले मतलब देखिए, क्योंकि उनका आसुसन थिंकिंग अलग है, क्योंकि हमारा मैनेजर अलग है, उनका मैनेजर अलग है, क्योंकि बातें हो रही थी ऑल इंडिया की एक होना चाहिए, सबसे मिल को जाना चाहिए। तो हमने कोशिश तो करी थी, जिसमें 100 लोग जुड़े थे और चारों आश्रमों को चिट्ठी भी दिया था, ऑफिशियल लेटर मेल करी थी, उनको सजेशन किया था 3-3 मेंबर भेजो, एक कमिटी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जाएगा। इसके बाद होने बावजूद भी मतलब एक भाई होने नाते कम से कम हमारा दुख के साथ भी कहना चाहूँगा, अगर वो आश्वासन को अगर उनको हाईकोर्ट जाना था, कम से कम एक बार सलाह तो आइभा से करना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी अभी जब तक हम देखो, हम किसको कुछ कहने से पहले अगर मान लीजिए हमें किसी को जाए, हम उसको मांगे, हमारा डिमांड करें, अगर हमारा डिमांड जायज हो, अगर वो डिमांड एक्सेप्ट न करे तो हम इसको किसी को कोर्ट जाए। अभी तो डिमांड उन्होंने, सरकार ने ये नहीं कहा कि द वैल्यूअर्स विल हैव टू अपीयर एग्जामिनेशन, ये लिखा द वैल्यूअर मे हैव टू अपीयर। तो मे और विल के बीच में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट और थोड़ी सी मीनिंग का समझना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने कहा मे, ये नहीं कहा कि विल। जैसे इसको तोड़ मोड़ कही गई कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 2-4 पहले ग्रुप में, ये चीज़ गलत है, ये वैल्यूअर्स है एक धोखा। तो इसलिए हम अपना सिस्टम चल रहे हैं और इसमें एग्जाम हाईकोर्ट जाने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत जरूर हो गई, जो दिल में बड़ी गहरा चोट, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी लीगलिटी मेहनत कर रहा है, और इन्हीं लोगों ने बुला के जो मेंबरशिप बनी, जो चिट्ठी पत्र भेजी गई, सो बाय ऑफिशियली सब हुई, काउंसिल और लीगल सभी के सामने हुई। तो फिर भी आगे जब बढ़ गए तो कम से कम एक सलाह तो होनी चाहिए, जो हम कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन नेशन, एक इंडिया बात करते हैं, तो कम से कम सलाह एक बार आइभा से लेनी चाहिए थी, जो ये मेरा पर्सनल आसन तरफ से राय है। एनीवे, और किसी को कुछ कहना हो? हाँ सुनील जी बताइए सर। सर आपका माइक बंद है सर। तो पहले सारों को नमस्ते सर, सुनील सिंह फ्रॉम धनबाद झारखंड। ये सुगाता सर ने सही कहा, दास बाबू ने भी सही कहा, जब हमारी बातें सारे एसोसिएशन से हुई है और डिस्कशन हुआ, लेटर ऑन फिर हम लोग आगे बढ़े हैं कि कोर्ट में जाने का प्रश्न पागल कुत्ता की तरह क्यों ऐसे खड़े हो गए। हम सरकार से लड़ पाएंगे, हमारी क्षमता है, उनसे पे करेंगे, विगत इतने वर्षों से कार्यरत हैं। हाँ, हमको ट्रेनिंग करवाओ, सेमिनार कराओ, मस्ट कराओ। अब झगड़ा करना ही तो कहीं कहीं का हल नहीं है। ये देखिए क्या है सर, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने भी ऐसा किया है बहुत बड़ी गलती की है। आपको भी याद होगा दास सर, हम लोगों ने आइडेंटिटी के लिए झगड़ा किया, क्या परिणाम हुआ? आज भी बैंक ले रहा है। हाँ, जिन लोगों ने कोर्ट में गया तो लिखता है सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो ये जो हमारी बातें हो रही है सरकार से, इतनी अच्छी हेल्दी बातें हो रही है कि कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है भाई। लेकिन आप किसी को मना भी नहीं कर सके, तो भारत है, सबका अपना अपना राइट है। ये मूर्खों वाली बात है, ये जो है ना समझदारों की बात नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, इतने वर्षों से नेशन का सेवा दे रहे हैं साहब, ये और सीनियर सिटीजन, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार एडमेंट हो जाएगा? लेकिन जब उनको आप नाक की लड़ाई होगी तो आपको पसंद करते हैं। आपकी कौन सा बात को वो नहीं कर रहा था। हाँ भाई, आप भी हटाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो बैठे हुए हैं, वो वहाँ मंत्रालय में जो लोग भी है, हमने उनसे पे दिया, उनसे एप्लीकेशन डाले, रिप्लाई हुआ उनका, तो अब वाई वर थिंकिंग नेगेटिव है। हाँ, वही लोग जो हमारे आर्मियों करा रहे हैं, वो चाहते हैं कि एग्जाम हो ताकि हमारी कमाई बढ़े। मेरी समझ से मैं यही सोच रहा हूँ कि जो केवल आर्मियों के लोग हमारे चंद मेंबर्स को भड़का के हाईकोर्ट की तरफ कर दिया।
इसे कहाँ उचित है सर? तो हमारी बातें हो रही, इतनी हिंदी बातें हो रही है, पूरे देश में भी इलेक्शन चल रहा है, सब लोग इस तरह है ना, उनका कोई सिलेबस है या जो 25 साल पहले जिसकी शादी हो गई उसको रीमैरिज चाहे करा हुआ, तो या हमारी बैंक की तरफ से हम लोग कहे तो कोई कंप्लेन है? हम देश का राष्ट्र का सेवा दे रहे हैं, न कि किसी घर का और किसी समाज का किसी राष्ट्र का सेवा दे रहे हैं। आपने ही तो दिया था ना। सर हाँ जी, हाँ जी। देखो हिंदी में एक कहावत है, बीच तुम बढ़े चलो, बाधाएं आते जाते रहे जी। वो है सर। नहीं, हम लोग तो बढ़ ही रहे। एक चीज मैं, सुनील जी धन्यवाद, एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप हमसे पूछ सकते हैं, बिकॉज हम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। बस कुछ चीज आपको नहीं बताया जा रहा है जो कि मेटिकुलस डिटेल्स है। देखिए, जंग का एक कुछ उसूल होता है, कुछ टैक्टिक होता है जो जंग जीतने के बाद बताया जाता है। सर मानते नहीं मानते, सारे चीज डिस्कस नहीं किया जाता है, उसके अलावा सारी चीज आपको बताया जाता है, डेवलपमेंट बताया जा रहा है और तरीके से बताया जा रहा है। अब हमसे पूछ सकते हैं कोई भी लोग, ये साहब ऐसा है, कोर्ट जाने से अगर स्टे मिल जाता है हमको तो क्या फायदा क्या नुकसान? मैं इसका एनालिसिस करके बता। आप पूछ सकते भैया आपको कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है, इतने माथापड़ी करने का, चिट्ठी लिखने का, ये वो फलाना ढिमका, क्या जरूरत था? हम कोर्ट चले जाते, स्टे लेके आते। मैं बता रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू सर, सबको बता रहा हूँ, सुनील सिंह से आपको बता रहा हूँ सर, सबको बता रहा हूँ। देखिए सर क्या होता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं करना, हमको तो लड़ना है, हम तो लड़ाकू है भाई, ठीक है, हम लड़ाकू है, हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे और लड़कर को हराएंगे। बहुत अच्छी बात है, सरकार को हराएंगे। कई लोगों को पता भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के वकील का फीस कितना होता है एक सिटिंग का। हमने 8 लाख रुपए दिए एक बार के लिए, कई लोगों को पता हो, जो कि हाथ पैर जोड़ के उनको 12 लाख से 8 लाख में उतारा हमको। चलिए छोड़िए वो बात, मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज स्टे मिल जाता है, सपोज स्टे मिल जाता है, बात कर रहा हूं, हम कुछ करने से पहले स्टे मिल जाता है, क्या होगा उसमें? एग्जाम तो रुक जाएगा, मगर हमारे सर पे वो जो उसको बोलता है ना तलवार लटका हुआ रहेगा। आज अगर चीज सरकार से बात करके हम सरकार को कन्विंस कर पाते हैं कि भैया नहीं चाहिए, एग्जाम नहीं होगा 30 वाला के लिए, ग्रैंडफादर, तो क्या होता, मामला निपट जाता है एक बार, वंस फॉर ऑल, खत्म हो गया। सब अपने अपने काम करो भैया, हमारी जिंदगी में 1000 प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लेकर चल नहीं सकते हैं, तो निपट जाता मामला। अब क्या होगा, 2 सिचुएशन, एक कोर्ट ने मना कर दी, बोले भैया मैं तो नहीं जानता हूं, ये सरकार की पॉलिसी है, हम नहीं जानते, आप जाने सरकार जाने, तो क्या होता, सरकार को नाक का बात भी आ गया, सरकार बोलेगा ठीक है भैया, कोर्ट में तो मना कर दी, आप आ जाइए भैया, बैठ जाइए एग्जाम के लिए, मस्त रहिए। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, सपोज कोर्ट ने स्टे लगा भी दिया, सपोज बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, स्टे में, तो स्टे मतलब राय थोड़ी है, आपको सबको पता है, स्टे मतलब स्टे होता है, स्टे मतलब स्टे होता है, तो मतलब सर के ऊपर हमारी वो रहता, लटकता रहेगा हमको जिंदगी भर। तो आप मेरे को बताइए, आप लोग सारे जो 40-42 लोग जुड़े हुए, सब लोग प्लानेट मेंबर्स हैं, अब बताइए कौन सा बेहतर है? एक बार बात करके थोड़ा सा टाइम लेके इस प्रॉब्लम को जिंदगी भर के सॉल्व करना जरूरी है, जरूरी बेटर है, या जिंदगी भर इस प्रॉब्लम को लेकर आगे चलना जरूरी है? सर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो दास सर को थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो मे बी क्वालिफाइड नहीं है, इसमें लिखा है वेयर अ पर्सन, ये 6 नंबर है जो अपना गजट आया था, वेयर अ पर्सन इज रजिस्टर्ड एज ए वैल्यूअर अंडर सेक्शन 514 ही शैल बी रिक्वायर्ड, मतलब ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि उसको पास करना पड़ेगा, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन एन एग्जामिनेशन विद इन अ पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड ऑन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैं यहाँ यूज किया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी जो स्पेसिफाई करे उसके लिए मैं यूज किया है, लेकिन ये शैल बी रिक्वायर्ड दिया हुआ है। हालांकि कोर्ट वोर्ट में जाने का मैं बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन कर रहा था कि ही मे हैव टू पास नहीं है, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू दिया हुआ है। और अगले उसमें ये भी दिया है कि वेयर ए पर्सन फेल्स टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज पर सब रूल 6 विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, his registration under 514 shall stand cancelled with effect from the end of such specified period. हाँ, उन्हें ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसके मतलब आप बिल्कुल इसका इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है अनुसार। और
बाकी कोर्ट के बारे में जो आपके राय है बिल्कुल सही है सर, ये तो बात कहूंगा मैं। और मतलब हमारी कहना ये है, सरकार ने अभी तो एग्जाम की बात की, ऐसे नहीं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी भाई ये एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, सबको बैठने पड़ेगा, फलाना फलाना, कुछ भी तो नहीं किया ना। तो अभी भी बात की रास्ता खुले हुए हैं और हम जारी है। तो बस मैं यही पॉइंट बोलना चाह रहा था, एक सब जुडिस केस के अंदर थोड़ा सा पता नहीं टेक्निकलिटीज कैसे क्या आएगा मेरे को नहीं पता, बट समहाउ मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ हरिओम गिरी जब से मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है सर। It was a bad evening for me, sir. But thing is that when those associations were knowing that IVA is working on that, and on the working of the IVA, you are a member of the IVA or member of all over India, when government had accepted all the 4 points what have been suggested by the legal team, and they are also knowing that we are also working on the examination clause, then this is not the way. Without consulting us, they would directly go to the court. This is not the way of working there. After working of all of you, and we got the 4 positive results, and examination also clause also we are working for that. So in between, without informing, without consulting with IVA, if they had gone to the court, this is meaningless. चलिए सर, रहने दीजिए, जिसने जहां गए उसके बधाई हो, अपन प्रोसीड करें सर। ये उनकी लुकआउट है, बिकॉज सारी चीज इतिहास में लिखा रहेगा सर, कौन क्या किया क्या नहीं किया। और मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ। बाकी और भी मेंबर्स है सर, आप आपके सुझाव और जो भी ओपिनियन है बताएं सर। ये कोर्ट कचहरी वाली बात जो है हमको भी बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, तो अपन आगे की बात करें। बताइए सर। हाँ चंदन, बोलो क्या कहना चंदन। हाँ बोल रहा हूँ साहब, हम तो AMIS किया है वैल्यूएशन में, फिर भी मास्टर डिग्री किया हूँ अन्ना वाला यूनिवर्सिटी में। तो हाउ मेनी टाइम्स आई विल गिव एग्जामिनेशन एंड वैल्यूएशन? See, as far as examination is concerned, I like to clear you all. We are in the 100% we are sure that there will no provisional examination. So please wait for a few days or few times. Then you will be updated about that. Since we are appearing, since we are representing government about this, and since the government had accepted all our 4 points with positive way, so we are sure that government will also accept our examination provision. No existing 34 valuers will have to appear for examination. What we feel it. So we are working on that. So all the valuers members and members, all the valuers of India have to consider this fact into account. Already I have independent valuer of Calcutta High Court, and already I have done some valuation as per justice on given just assignment. चंदनदा, हाँ बोलिए। दादा नमस्ते। दादा ऐसा है ना, ये गवर्नमेंट अभी ट्रायल मोड में चल रही है। देखिए सबसे बड़ा गलती तो यहाँ पर हुआ जब हमारा एसोसिएशन ऑल इंडिया वैल्यू एसोसिएशन पूरी इंडिया का सबसे बिगेस्ट एसोसिएशन है। हमारे प्रेसिडेंट सब लोगों को बातचीत किए, बात आ गई तो ये भैया इंडिपेंडेंटली आप क्यों चले गए, क्या हो सकता है इसका? नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं ना कि हम ये पास किया हो, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ज्यादा परेशान कीजिएगा तो एक कारण है ना कि उसमें कई टैक्सेस जीएसटी जोड़ता। हमें उनसे प्रार्थना करना है कि हम निःशुल्क सेवा देते आए हैं, विगत 25 वर्षों 30 वर्षों से दे रहे हैं। नाउ वी आर सीनियर सिटीजन, व्हाट्स योर डिसीजन सर, वेदर यू आर डूइंग द राइट वे में काम कर रहे हैं, लोगों को मान रहे हैं सब लोग। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी तो बना है ट्रायल मोड में। देखिए गवर्नमेंट को इसको कितना बड़ा फायदा हो गया। शायद आप सुन के बड़ा हतप्रभ होंगे, इसमें जितने लोगों का 34 इश्यू है जो आपको ग्रैंड फाइलिंग बोल रहा है, मालूम है आपको उसमें कितने लोग अभी है इंडिया में? हाउ मेनी पर्सन्स? हम लोग कभी लाइफ सर्टिफिकेट दिए नहीं दिए। सम पीपल आर सिटिंग एट कनाडा, सम पीपल आर लिविंग एट यूएस, बट उनके नाम पर काम कर रहे हैं। मालूम है आपको? अभी फॉर्म फिलअप करना है, आप देखिएगा कितने लोग बच जाते हैं हमारे यहाँ। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है उससे हम निवेदन करेंगे, उनको गाइड करेंगे। उनका एक्सपर्टाइज नहीं है इस प्रोफेशन में, हमारा एक्सपर्टाइज है। कुछ भी है
वो बगैर हमसे पूछे हुए, हमसे परामर्श किए हुए, हम लोग बहुत सारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैल्यूअर ही हैं, वी आर ऑल्सो अप्रोच सर्वेयर। हमसे ये पूछेगा, हमारी ही बात को सुनेगा, समझेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। उन्होंने लिखा, उनसे एरर है, उनको लिखना चाहिए था क्या, शार्टेड ट्रेनिंग, शार्टेड सेमिनार अटेंड करो, अपने आप को अपग्रेड करो। ऐसा नहीं है जनरल, देखिए एकदम पॉजिटिव है। आप थोड़ा सा बहुत अच्छा, हमारा जो टीम है, लीगल टीम, दास बाबू है, सुगाता सर है, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रिमेंडस ही लोग मेहनत करके अब इस मुकाम पर पहुंचे। इसे पीछे की तरफ देखना ही नहीं है, नेगेटिव सोचने वाले सोचते ही रहे। ना मैं तो देख रहा हूँ सब कुछ, सब जो कर रहा है, सुगत साहब जो जैसे कर रहा है बहुत अच्छा किया है। एवं हम लोग इतना ग्रुप में रोटेट कर रहा है, और नंबर्स ऑफ वैल्यूअर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो कितने लोग हैं, आप काउंटिंग कीजिए तो ये जो हमारा 34 एवी बना हुआ है, कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूअर है पूरे इंडिया में, कितना नंबर्स ऑफ वैल्यूअर है जिसको अब ये अपना आयु भी जो दिया है, कितने लोग हैं, अब कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है दुर्गा के बारे में जो अभी दास बाबू ने कहा, बिल्कुल सही कहा। दुर्गा के 10 हाथ में वो है शक्ति, कभी जाके विजय प्राप्त हुआ। ये सुगाता सर वो है प्रमोद भाट क्या किसी ने कहा हम प्रोफेशन छोड़ देंगे, कहा ये साहब पूछोगे तुम्हारा क्वेश्चन सेटल कौन होगा, हम बताएंगे, हम गाइड करेंगे। और प्रमोद भारती से कुछ कहना, प्रमोद भारती जी। सर मैं कहना चाह रहा था, हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। सर मैं कहना चाह रहा था कि जो जिस जेल से आप लोगों ने काम किया कमेटी में, हम लोग आभारी हैं, इसके पूरी जिंदगी में आभारी रहेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब हम लोगों ने नेशनल लेवल पर और भी एसोसिएशन से बात की, उन्होंने नहीं सुना, तो हम लोग को लिखना चाहिए उनको कि साहब हम लोगों ने बात किया था, ये सब हुआ था, फिर भी आप लोग कोर्ट के एक बार हम लोगों से पूछना चाहिए था, बात करें। हम लोग लिखे, क्या दिक्कत है उसमें उनको। दूसरा ये कि हम अभी भी कोशिश करें कि हमारे नेशनल लेवल पर भी सारे एसोसिएशन मिलकर के कोई फोरम बनाए, ताकि हमारे थोड़ा सा और ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले हम लोगों को। सर मैं बताऊं, इसी जो बात आप कह रहे हैं, हम लोगों ने मीटिंग कल कराई थी, तो साउथ का 4 एसोसिएशन थे, तो हम लोगों ने तय हुई थी कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी। तो उनको चिट्ठी दी गई थी, अपना जो 3 कमेटी, अपना एसोसिएशन 3 नंबर हमको दीजिए, ताकि हम उसको एक कमेटी बनाए। उसका इतनी मेहनत करने के बाद इतने ऊपर तक आ गए हैं, हमें कोर्ट वाली उस कोशिश को कंटिन्यू करना चाहिए कि हमारे नेशनल लेवल पे जॉइंट एसोसिएशन हो जाए। जो कोर्ट वाली बात है वो अभी हरियम जी बता रहे थे, कोर्ट वाली बात अभी मालूम जानकारी सर हम लिख सकते हैं कि हमें एक संज्ञान में आया, वी हैव कम टू नो, वी कैन राइट टू देम। अगर कोई ऐसा तो बताएं वो लोग, तो क्या उन्होंने ऐसा। सही बात है, तो आपका सजेशन वेल टेकन, विल कंसीडर दैट। क्योंकि अभी जानकारी अभी हुई ना, तो इसलिए आप उसको और डिस्कशन करेंगे। फिर भी तो हमें नेशनल लेवल पे फोरम बनाना चाहिए सब एसोसिएशन मिल करके, ताकि हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथन मतलब से मिलेगा। ठीक है सर, वो तो देखेंगे सर। ठीक, ओके, थैंक यू। मैं इस बारे में मैं थोड़ा सा लीगल जो डिस्कोर्स है, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और एआईबीए के साथ तो मेरे ख्याल 1.5 साल ही हुआ है मेरा, बट मैं आर्किटेक्चर बोलिए, वैल्यूएशन बोलिए, ये आर्बिट्रेशन बोलिए और लीगल डिस्कोर्स है, इन टेक्निकल चीज में बहुत दिन से जुड़ा हूँ मैं हर एक चीज को बहुत शुरू से ऑब्जर्व करते फिर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग दैट पीरियड ऑफ 2016, 17, 18 जिस टाइम पे मेरा फैमिली कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, पेरेंट्स का डेथ हो गया था, उसलिए मैं उस टाइम पे मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया, मैं प्रोफेशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो पाया 2-3 साल, और सारे मेजर डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था 2016, 17, 18 में आपको ध्यान। उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो बात अलग। मैं आपको बताऊं, जो कोर्ट केस का जो नतीजा है ना सर, कोर्ट केस का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कोर्ट केस हुआ है। मैं टॉकिंग अबाउट नॉट द इंडिविजुअल कोर्ट केसेस, जहां पर किसी को टीपीए में डाला गया, किसी को ब्लैकलिस्ट किया गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं टॉकिंग अबाउट ए जनरल पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एजेंसीज और द बैंक्स फॉर द वैल्यूअर, पॉलिसी डिसीजन की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिपेंडेंट बॉन्ड की बात करें,
फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें कि सब ऐसा है, और भी कोई जो जनरल इश्यूज है, थर्ड पार्टी लिस्ट है उसको हटाने की कोशिश किया गया था। ये टीपीए क्या होता है, किसी को आप ऐसे किसी का जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एंटिटी जो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, जो आईबीए मेंटेन करता है। दीज आर द बेसिक चीज जो आपको, मेरे को, सबको, सबका जिंदगी में इंपैक्ट कर सकता है। एंड नॉट बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स जो कि वैल्यूएशन में आया हुआ है कोर्ट केसेस में। तो उस जगह हमको प्रैक्टिकली एक ही जगह हमको सक्सेस मिला है, वो ये है जैसे ही आईबीबीआई आया था। मैं कोर्ट केस की बात कर रहा हूँ सर, कोर्ट केस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस फॉर ऑल द पैन इंडिया वैल्यूअर्स। उस टाइम पे जब 2017-18 में जो वैल्यूअर्स बिल पास हुआ, अपना जो भी वैल्यूअर्स बिल बता रहा हूँ, सॉरी, कंपनीज एक्ट पास हुआ वैल्यूअर्स के लिए, तो कुछ कुछ बैंक्स जो है वो जिद करने लग गया था, भैया आपको आईबीबीआई सर्टिफिकेट दीजिए, आपको ध्यान हो। कई सारे बैंक जिद करने लग गए थे कि 34 से काम नहीं चलेगा, आपको आईबीबीआई सर्टिफिकेट दीजिए। तो कुछ स्टेट एसोसिएशंस हमारे में से कोर्ट में गए थे, स्टे लेके आए, और उन्होंने, सरकार ने अल्टीमेटली बैक ट्रैक किया और उन्होंने बाकायदा एफिडेविट लिख के दिया, भैया ऐसा है, आईबीबीआई का जो वैल्यूएशन वैल्यूअर है वो अलग डोमेन का है, अलग वर्टिकल का है, 34 वैल्यू अलग है, तो उनको मिक्स नहीं करेंगे। ये एक सक्सेस था बेसिकली। उसके अलावा हमको किसी जगह में कोई भी सक्सेस नहीं मिला एक्सक्लूडिंग दिस वन, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस था। ये जो 34 वैल्यूअर्स के लिए बहुत, मेरे पास भी बहुत सारे बैंक से आ गया था, भैया आपका नाम हटा देंगे, मैं भी आईबीबीआई नहीं हूं सर, मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट हमारे कई लोग मतलब आईबीबीआई होंगे साथ में, 34 उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जो 34 ओनली है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम तो बिल्कुल होश खो गए थे, तो गए काम से क्या करेंगे, मगर उस टाइम पे रिलीफ हमको जरूर मिला था कोर्ट थ्रू। जैसा वैसा है, सरकार ने बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, एफिडेविट दिया सरकार ने, 34 अलग है और आईबीबी अलग है। दैट वाज सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। इनके लिए जो एसोसिएशन काम किया, सबके लिए हम लोग सब लोग आभारी है। बट उसके अलावा सिवाय सम फ्यू स्टेट हमको कोई सक्सेस नहीं मिला। एक बात जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, लीगली मैं वकील नहीं हूं, तो भी मैं थोड़ा बहुत लॉ समझता हूँ और मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझता हूँ। जो टेक्निकल पार्ट्स है वो ये है, जहां भी स्टे मिला, स्टे मतलब मामला लटक गया, चलता रहेगा, अब चलता रहेगा। तो हम तो, मैं सोचता हूँ कोई भी चीज में अगर हमको जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है। अगर कोर्ट जाए तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट जो आएगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है वो वाली बात है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा पता नहीं, जो भी होगा, बट ठीक है। तो दास साहब को ही बोलूंगा, दास सर हमको गाड़ी का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सर हमको। ऑफकोर्स स्पीड बढ़ाइए और एकदम आगे बढ़िए। मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग, हम बात करें, मैं भी बात करूंगा, हमारा एसोसिएशन भी बात करेगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारा एसोसिएशन लिख चुका है। अब उन लोग बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे, हमारी बड़प्पन है, मानता है कि हम फिर भी उनसे बात करेंगे। आप गलत कर चुके हो, आप कोर्ट क्यों गए, कहाँ कंप्लीट कर दिया कि भाई एग्जामिनेशन पास किए हुए हम आपकी सर्विसेज नहीं अप्लाई करेंगे। बहुत बड़ा राष्ट्र है, यहाँ कोई भी डिसीजन ऐसे है कि ऐसे मत कीजिए, अनेक माने लोगों से मिलिए। हर जगह भारत है, भारत में बहुमत देखा जाता है, बहुमत की तरफ है। हमारे साथ 19 स्टेट जुड़ा हुआ है, अब चंद स्टेट लेके हाईकोर्ट जा रहे, जाइए आप। नहीं, भारत सर वो है। और किसी को कुछ बोलना? मैंने एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो भाई बातें आया ना, जो सुनील सिंह साहब ने बहुत अच्छा एक बात करा, सबको साथ में लेकर चलने की जो बात उन्होंने कहा, तो हम इसमें से, मेरे को पता नहीं 43 मेंबर्स जुड़े हुए, उनके एज ग्रुप सबकी क्या है, मैं जिंदगी को जानता हूँ, सबकी एज ग्रुप काफी 50 साल प्लस है, ये तो जानता हूँ। आप एक ध्यान रखिएगा, शुरुआत से हमने जो ग्रैंडफादरिंग माना वो सारे 34 वैल्यूअर्स के लिए माना। हमने वो नहीं बोला कि 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल की, मैंने पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आप लोगों को सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आर्किटेक्ट्स एक्ट का, मैं आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट्स एक्ट में ग्रैंडफादरिंग थे, बिल्कुल थे, मगर साथ में 5 साल के राइडर थे। मतलब जिस आर्किटेक्ट ने 5 साल की एक्सपीरियंस था उनको एक ग्रैंडफादरिंग मिला था। जिन आर्किटेक्ट्स को 1972 में 5 साल की एक्सपीरियंस थे उनको एक ग्रैंडफादरिंग मिला था। मगर हमने, एसोसिएशन ने, सारे जो बॉडी बनाया गया, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, शुरू से हमारी पॉलिसी ये था, ये साहब हम जाएंगे तो सारे भाई को साथ में लेकर जाएंगे।
उसी नतीजा ये है, सरकार ने जो गेजेट नोटिफिकेशन दिया है उसने कहा कि 31 मार्च 2026 तक का जितना रजिस्ट्रेशन है, और मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कुछ भाई हमारी है, छोटे भाई, जिनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 को मिला है, किसी को 2 दिन पहले मिला है, किसी को 10 दिन पहले मिला है, वो भी ग्रैंडफादर्ड है, उनको भी एडवांटेज मिलेगा सब कुछ का। मेरे कहने मतलब बोलने जो चाह रहा हूं पॉइंट, या हम जब आगे बढ़े सबको लेके गए, पूरा 34 बिरादरी को लेके गए, जो साथ दिया उनको भी लेके गए, जो साथ नहीं दिया चुप बैठा रहा उनको भी लेके गए, और अभी भी हम वही कर रहे हैं। एग्जाम हटेगा तो सारे 34 के लिए हटेगा, ऐसा नहीं कि ये कोई 50 साल के ऊपर है, 100 साल के ऊपर है, दूसरे हिसाब 70 साल के ऊपर है, 50 सबकी यही कोशिश कर रहे हैं हम। हमने कभी भी ये बात नहीं कहा जो 50 साल के ऊपर होगा उसको एग्जाम देने नहीं पड़ेगा, हमने नहीं कहा, हमारी चिट्ठी में किसी चिट्ठी में दिखा दीजिए। इसका मतलब क्या बोलने चाह रहा हूं, हम सबको लेके चलने में बिलीव करते हैं, सबसे बात किया, क्यों हमारे छोटे भाई जिसका 50 साल की एक्सपीरियंस, 50 साल उम्र नहीं हुआ, 40 साल की उम्र नहीं, उसको हम क्यों छोड़ के जाएंगे? तो ये क्या बात हो गया? आपको बात करना चाहिए था ना एक बार सबसे। अरे दास बाबू से बात कर लेते, विश्वास से नफरत है तो, गुस्सा है तो क्या है, दास बाबू से बात कर लेते। मेरे से तो पता है मेरे को, ये आदमी 1 मिनट में मुंह पे कह देगा ये कोर्ट में नहीं जाऊंगा मैं। दास बाबू तो सबसे बात करते हैं ना, दास बाबू का एक पर्सनैलिटी ऐसा है। तो ये मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा सचमुच, ये इन्होंने साला ऐसे काम कर दिया, दैट इज रियली शॉकिंग। दास बाबू ने शुरू से ही जो भी समस्याएं आई तो हर समस्या में ये बढ़ चढ़ के बात किए, आगे बढ़े और रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। इन्होंने आरओ में जाके, एलएचओ में जाके लोगों से मिलना, डीएम से बात करना, डीजीएम से बात करना, और इसका बहुत बड़ा उपलब्धि रहा कि हम लोगों को 34 एबी और आईबीपीआई का जो बीच में जो वार खड़ा हो रहा था, दीवार खड़ा हो रहा था, अब तो कोर्ट भी विश्वास ऐसा है ना, कहीं कहीं पे कोर्ट जो है एनपीए प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हमारे यहाँ झारखंड बिहार में हम देख रहे हैं कि जो आईबीपीआई के लोग कर दिए उनको रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, कोर्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा। सरफेसी एक्ट क्या है उसके, अब हम साहब लीगली तो उतना हम नुकसान नहीं है, बेसिकली वी आर टेक्निकल पर्सन, हम अपने सब्जेक्ट में मात्र हैं, बट आपकी बैंकिंग में बहुत सारा चीजें और लीगल भी है, टेक्निकल भी है, बहुत सारा अंदर बाहर की चीजें, तो हमको अपग्रेड करो ना। डॉक्टर भी हमारे यहाँ है, इंजीनियर भी हमारे यहाँ, अपने आप को अपग्रेड, जो भी प्रोफेशनल है उसको अपग्रेड होते रहना। जो डेवलपमेंट होगा हम सेमिनार अटेंड करेंगे, हमें आओ कहिए, हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हटा देंगे, ये तो गजब बात है, गलत बात है। ऐसा गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती है कि हम हटा देंगे, इतने 20 साल से कितने राष्ट्र का सेवा किया, ऐसा मामूली सा बात है क्या? ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। हमें भी बड़ा शौक है कि कैसे लोग हैं भाई, जब बात हमारी पॉजिटिव नहीं होती, उधर से जो दास बाबू का लेटर का रिस्पॉन्स दिया है कभी पॉजिटिव नहीं रहता, हेल्दी नहीं रहता, तो हम लोग उस पर कभी सोचते भी कि हाँ भाई अब इसमें क्या एक्शन लिया जाए, कैसे हम लोग सर्वाइवल हमारा होगा, ऐसी तो कहीं बात ही नहीं। हमारे यहाँ भी झारखंड में हम लोग केस किए हैं रेमिटी के अगेंस्ट में, अभी स्टे है, पड़ा हुआ है, यूं पड़ा हुआ है, हम लोग उसको पैसा देकर वकील साहब अभी वो पड़ा हुआ है, लेकिन तलवार तो लटका हुआ, क्या आवश्यकता थी? हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने भी, अरुण सर ने भी सही कहा कि भाई ठीक है वैसी बात है, तो हम लोग फिर बात करके पूरा पैन इंडिया ही बना, तुम्हें आगे बढ़ो भाई, हमारा भी मतलब है, हमारा भी मतलब, हमारा ऐसे थोड़ा ही चल पूछा। देखिए हाँ, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारे यहाँ जो जाली, डुप्लीकेट और ये वो तो आवाज ही घट जाएगा, ऑफकोर्स उसकी आवाज, लोग है ही नहीं, उनके नाम पर लोग काम कर रहे हैं, फॉरेन में बैठे हुए उनके नाम पर काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बना के काम कर रहे हैं, सिटिंग एट सामान बड़े, वो बॉम्बे बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनका ब्रांच चल रहा है, इंडिविजुअल लोग काम करते हैं। बॉम्बे से आके हमारे यहाँ चोला चंदनदा का प्रॉपर्टी देख सकेगा जो उनका एक्सपीरियंस है वहां के बारे में, और ठीक है वो गलत है, ओके सर, वो है, जय जगन्नाथ, आगे बढ़े हैं हम सब आपके साथ। और किसी और कुछ सजेशन?
हाँ बोलिए तिवारी जी। ठीक सर, कोर्ट में जाना ठीक नहीं रहेगा अभी। नहीं, कोर्ट में तो सवाल ही नहीं उठता। देखो बात है कि जब हम सरकार से बात चल ही रही है और सरकार ने मना नहीं किया, हमारा एप्लीकेशन कंसिडर कर ही रहा है, तो पॉजिटिवली मतलब हुए, तो फिर हमें तो कोर्ट जाने मतलब नहीं ना। जो गया भी गलत किए, निश्चित बात है कि हम तो कोर्ट तभी जाते हैं अगर सरकार हमारी बात न मानता। अभी तो प्रोसेस है, सरकार बात मानते 4 कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, बाकी तो एक ही पॉइंट रह गया। कल को सरकार जा कहेगा भैया कोर्ट जाने क्या होता, हमने तो 4 कंडीशन कर ली, 5 अभी कर ही रहे हैं, तो आप कोर्ट जाने क्या मतलब। तो खैर हम नहीं लोग सर, आप सही डायरेक्शन में हैं। हम लोग तो अपना काउंसिल और लीगल टीम दोनों मिलकर तो तय कर लिया था कि अगर सरकार मानेगा तो हम इस ढंग चलेंगे, अगर बाई चांस नहीं माने तो कोर्ट का चलेंगे। यहाँ तक हम लोग ये भी तय हो गए, यहाँ तक हम लोग ये भी तय हो गए थे, और कोर्ट जाएंगे तो कौन सा हाई कोर्ट जाएंगे भी हम लोग तय हो गए थे। कोई जरूरी नहीं थी हम यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए कुछ कहे, हम लोग अपना प्लानिंग कर चुके थे पहले से। लेकिन क्योंकि सरकार हमारा बात मान ही रहा है और एक पॉइंट को सरकार मानने की प्रॉमिस भी किया है, तो फिर तो बेकार है ना। चलो और किसी का कुछ कहना। अच्छा एक चीज़ मैं भूल जाऊंगा बताने के लिए, एक्चुअली हमारा जो 31 सितंबर तक हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमको अप्लाई करनी है, वो डेट स्टार्ट हो गई है, मतलब ये अप्रैल से, लेकिन हम लोग भी कोई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो पॉइंट है जो फॉर्म नंबर 169 है, उसे 2 जगह पे RVO का पॉइंट है, वो जो हट जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी कोई हड़बड़ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा तो सितंबर तक 31 सितंबर तक है, अभी बहुत समय है। तो इसलिए कोई भी चाहे नए बच्चे हो या पुराने हो, कोई भी हड़बड़ नहीं, और समय बहुत है। पहले आप लोग फॉर्म भरोगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, ये हमारा वादा है। हमारा काउंसिल मेंबर और लीगल टीम मेंबर तभी भरेंगे फॉर्म जब आप लोग सब भर चुके होंगे। तो इसलिए अभी समय बहुत है, कोई भी आदमी किसी का बहका में आप फॉर्म न भरिएगा जो इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई करने के लिए। ये जो 34 जो RVO वाली क्लॉज हट जाएगी फॉर्म 169 से, तभी सब लोग भरेंगे। वो आपको सबको पोर्टल बना दिया क्या वो? अभी अपलोड नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल CCID से बात हुई थी ना, तो उनका कहना था कि आप जो है ना इसको ऑनलाइन भी कर भेज सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो, बाय पर्सन भी आ सकते हो। लेकिन जो ये वाली पॉइंट उठी जो RVO वाली, तो ये हो रहा था कि आप RVO, क्योंकि लॉ में RVO का वर्ड हट गया, तो ये पहले जो फॉर्म बनाई गई थी वो जो लॉ थी RVO, तब ये फॉर्म थी। लॉ वाली पॉइंट तो हट गया, बाय मिस्टेक फॉर्म में वो RVO का 2.93 और 9.4 और 5 ये दोनों पॉइंट रह गया, ये बाय मिस्टेक हुआ। तो या तो आप इसको काट के लिख दो कि दिस इज नॉट अप्लीकेबल, लेकिन बेहतर ये है कि हम काट पीट करें क्यों और थोड़ी इंतजार न क्यों कर ले। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी के बात न सुने, कोई ग्रुप में क्या पोस्ट है न सुने। कोई ग्रुप में कोई कह रहा है कि हमें एग्जाम देना है, उसके लिए हमको पैसा दो, हमको ट्रेनिंग करा देंगे, कुछ न सुनो। अभी महीने भर, कम से इसी महीने तक आप चुप बैठ जाओ, अगले महीने जो वेबिनार में आपको बता दी जाएगी हमें क्या करना नहीं करना। कम से इतना विश्वास आश्वासन पे रखी जाए। आश्वासन में काउंसिल और लीगल टीम ये दोनों लोगों ने फॉर्म तभी भरेंगे जब आप लोग कह देंगे भाई आज से हम भरना चालू कर रहे हैं। मतलब कोई चोरी छिपारी काउंसिल का मेंबर या कोई लीगल का मेंबर कोई पहले भर नहीं भरेगा, ये 101% हमारी तरफ से वादा है। तो इसीलिए आप वो कटिंग फिटिंग चक्कर छोड़िए, जब अपलोड हो जाएगी तभी हम उसको फॉर्म भरेंगे, अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं। अभी ये बात हो रही थी वो जो प्रिंसिपल CCID यहाँ कानपुर में, तो उनका कहना था कि आप मेल पे भेज सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो, बाय पर्सन भी आ सकते हो। लेकिन हमारी जो लीगल टीम में जो बात हो रही थी, ये हुआ कि जो पर्सन भेजोगे तो मान लो कानपुर आएगी प्रिंसिपल CCID, एक चीज ध्यान रखिए, आप कोई भी CCID को अप्लाई नहीं करोगे, अपने प्रिंसिपल CCID में करना, अपने स्टेट कैपिटल में जहाँ प्रिंसिपल CCID होगी। जैसे यहाँ यूपी में यूपी और उत्तराखंड में कानपुर और लखनऊ है, ऐसा हर स्टेट में अपना प्रिंसिपल CCID को अप्लाई करनी है। कोई भी आदमी CCID को अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे मिस्टेक हो जाएगी। तो प्रिंसिपल CCID जो बातें हो रही थी, ये हो रहा था कि बाय हैंड अगर देने जाएंगे या तो उसे रिसीविंग ले लेना, लेकिन ये अभी नहीं करना, अगले महीने जो करने हो तब। जब बाई चांस बोले अगर बाय हैंड जानी है, बाय हैंड जाने से फायदा क्या है ना, आपका चेहरा जान जाएगा तो ठीक रहेगा, मेल पे पड़ा रहेगा। जो बैड हैंड जाना, ये कॉपी लेके जाना, रिसीविंग बुला लेना, ऐसा लोग कोई आपको फॉर्म तुमको आया नहीं, और उसी चीज को बाय मेल भी कर देना। ये आपको गाइडलाइन जो है अगले महीने जो वेबिनार है उसे बता दीजिए क्लियर कर क्या करना नहीं करना, और उसमें प्रिंसिपल CCID का भी
उनका एक्चुअली ना सीबीडी चेयरमैन से मीटिंग थी पिछले हफ्ते, तो हमसे मुलाकात तो होनी थी, लेकिन उनका क्योंकि सीबीडी चेयरमैन से फ्राइडे को मीटिंग थी तो इसलिए था उनका कहना कि जब आईवा का टीम आ रही है तो उनसे 5 दिन से बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बुलाने से फायदा क्या। तो इसलिए उनके तरफ से प्रॉमिस हुई है कि मंडे अगले हफ्ते में वो प्रिंसिपल से खुद बुलाएगा हमको। तो हमारा टीम में से जो मतलब सीनियर मेंबर्स है और जो भी है काउंसिल मेंबर है वो जाके मिलेंगे, उनसे डिटेल समझ लेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी। हमारा बार बार रिक्वेस्ट ये है, आप किसी भी ग्रुप का पोस्ट को विश्वास न करिए, हम आपके साथ हैं। जो कुछ कहना होगा हम आपको ऑफिशियली लेटर पैड है विथ साइन ऑफ द प्रेसिडेंट आपको मेल पे और ग्रुप पे डाल दी जाएगी, तो उसी हिसाब फॉलो कर लीजिए। ये अगले महीने तक इंतजार कर लीजिए, जो कुछ है क्लियर कट एग्जाम देना हो ना देना हो सकता है अगले महीने तक आपको क्लियर ये भी मालूम हो जाए अगले वेबिनार में। तो इसलिए ये आप टेंशन फ्री हुई है, कुछ आपको टेंशन लीजिए। आप फॉर्म भी अभी इनकम टैक्स अप्लाई न करो, अगले महीने जो हम कहेंगे तो आप अप्लाई करनी, ये हमारा कहना। ठीक है। लास्ट मंथ सैटरडे लास्ट में एक्चुअली वेबिनार में हमारा पिछले बार ही भाई बंधु ने कहा था, क्योंकि ये थोड़ी मतलब मामला थोड़ी सी अर्जेंसी है तो कोई टेक्निकल टॉपिक न रखे, हम यही रखेंगे। तो हम लोग ये भी अपडेट करेंगे या कुछ करना हो तो फिर हम लोग बता देंगे, क्योंकि अभी आज हो गया आपका 2 तारीख, हाँ अगले महीने में अभी 30 दिन बाकी है। तो 30 दिन में वी एक्सपेक्ट ए लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डन इन योर फेवर। तो जब हो जाएगी तो हम कहेंगे देखो आपका शक्ति बहुत काम कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी आगे भी करेगी। तो इसलिए आपको एक में अगले महीने जो वेबिनार होगी उसका पहले हमको जानकारी हो जाएगी। तो आपको अगर उसका पहले जानकारी हुआ उसका पहले भी हम अर्जेंट वेबिनार मीटिंग बुला लेंगे, आपको खबर कर देंगे। नहीं तो अगले महीने वेबिनार तो हो जाएगी। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया क्या इंस्ट्रक्शन होगी, यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एसोसिएशन, ऑफिशियली मैसेज नॉट व्हाट्सअप। आपको लेटर पैड है बाकायदा ड्यूली साइन बाय प्रेसिडेंट, आपको मैसेज दी जाएगी विद कंसल्टेशन विद काउंसिल एज वेल एज लीगल कमिटी। तो उसी को फॉलो करिए और किसी को कुछ न सुनिए, क्योंकि आप हमारे मेंबर हो, हमारा जिम्मेदारी बनती है आपको सही रास्ता दिखाना। बाकी तो चलो ठीक है, कौन माना न माना बात हो रहे। तो इतना ही हमारा कहना। अगले वेबिनार में हम यही डिस्कशन करेंगे और जो अपडेट हो जाएगी और भगवान ने चाहा तो अगले महीने में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। और अगर किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक्चुअली अभी 1 अप्रैल के बाद से कुछ मेंबर ज्वाइन किए। आई लाइक टू रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड टू टेल समथिंग टू अस। द मेंबर्स हु हैव जॉइन्ड आईवा फ्रॉम 1st April and onwards. So I like some of them are here also. I like to request them to come forward and tell something to us, please. मैं सोमू सरकार, मैं सिलगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत ताकि আমাকে বলতে বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आपका माइक बंद है सरकार जी, आपका माइक बंद है। बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, खुलिए। No, there's no one. बोलिए सर, बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर फोन कर दे घर पे, पहले फोन करना पड़ेगा ना। हाँ कर दो, 15 मिनट तो लगेगा। और लोग कर रहे बंदी कर। हाँ, मैं सिलगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरा वोल्टेक्स है, पहले मैकेनिकल में था। 2017 फरवरी 8 को मेरे को मैकेनिकल का वोल्टेक्स मिला था, प्लांट एंड मशीनरी। और मैं अभी 2024 में 11 सितंबर मेरे को सिविल का लैंड डीलिंग का वोल्टेक्स मिला है। तो दोनों वोल्टेक्स है मेरा। तो मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ, बीएससी किया, बीटेक एमटेक किया, उसके बाद एमएससी फेलोशिप किया अन्नामला यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इंग्लिश बिजनेस के ऊपर में। तो मैं अभी 41 जगह में 41 प्लेसेस में पैनल वैल्यूअर हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक प्रैक्टिस ठीक। मैं 1 अप्रैल के बाद में ज्वाइन किया है, 4-5-6 दिन पहले। थैंक यू सर।
और कोई मेंबर शायद मेरे ख्याल नहीं लीव हो गए। तो मैं जरा छत्तीसगढ़ से दुबई जी जुड़े हुए हैं। ये शायद प्रिंसिपल सीसीआईटी रायपुर से कोई बात हुई थी, उन्होंने हमको व्हाट्सअप करी थी। तो संदीप दुबे जी प्लीज बताओ कि आपका प्रिंसिपल सीसीआईटी से क्या बात हुई? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। आपका प्रिंसिपल से क्या बात हुई? मेरी सर यहाँ पे प्रिंसिपल इधर यहाँ सीसीआईटी बैठते हैं सर रायपुर में, प्रिंसिपल सीसीआईटी भोपाल में बैठते हैं सर। अच्छा। तो मेरी यहाँ सीसीआईटी सर से बात हुई सर, उनका कहना था कि हम लोग के वहाँ सीबीडीटी में दिल्ली में बात हुई थी इसके बारे में कि एग्जाम क्लॉज के बारे में। तो वो सर अपडेट दिए थे सर कि मोस्ट प्रोबेबली उनके जो डिस्कशन हुआ है उसमें 34 वालों को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, नए जो रजिस्टर्ड होंगे उनको एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा सर बोल के चीजें सर मेरे को बताया गया। जी। अच्छा, रंजन का भी ऐसा भोपाल से मैसेज आया था, वो भी सेम मैसेज बता रहा था। जी सर, मैंने उनको भी बताया था सर, रंजन पर भी बताया था मैंने। ठीक है। जी सर, जी सर, जी। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए उन्होंने कुछ बताई? सॉरी सर, जो फॉर्म भरने वाले कुछ बताया उन्होंने क्या? हाँ फॉर्म मैंने बताई सर, वो कि वो जो आरबीओ सर वो फॉर्म 169 उसमें रेटिफिकेशन होने वाला है, चेंजेस हो गए इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो। जैसे ही वो रेटिफिकेशन होगा उसको स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली सर बता रहे थे कि जो 30 सितंबर है डेट, वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। 34 वालों का जो लास्ट डेट है भरने का, वो भी डेट एक्सटेंड होने का मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ठीक है, ऐसा सर बताएगा। ठीक है जी सर। तो मतलब ये एक्चुअली ये बातें हर जगह चली रही है, प्रिंसिपल सीसीआईटी हर जगह चल रही है। तो फॉर्म तो आपको भरनी नहीं है कि वो 34AB जो आरबीआई वाली पॉइंट हटने बाद जो अपडेट हो जाए तभी सब लोग भरेंगे, अभी कोई भरेंगे सर। एक चीज और बताया सर सीसीआईटी सर की जो अभी नए रजिस्ट्रेशन के जो अप्लाई करेंगे फॉर्म 169, उसमें पहले फॉर्म भर के सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एक सर्टेन टाइम लिमिट देंगे, उसमें एग्जाम पास करना पड़ेगा। मतलब पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर एग्जाम पास करना पड़ेगा। आईबीबीआई में क्या है सर, पहले एग्जाम पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है सर। अभी तो हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपका सीसीआईटी तो वही कह रहा है ना। जी अभी वही एग्जाम वाली पॉइंट जो आपका सीसीआईटी ने कहा वही कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग 34 उनको एग्जाम नहीं देना। हाँ, उनको एग्जाम नहीं देना है, जो नया फ्रेश अप्लाई करेंगे उनको एग्जाम देना है। लेकिन वो भी एग्जाम भी बोले कि रजिस्ट्रेशन उनका भी हो जाएगा, जो नया फ्रेश अप्लाई करेंगे उनका भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, उनको देना पड़ेगा, जो नया अप्लाई करेंगे उनको देना पड़ेगा। हाँ, जो नया अप्लाई करेंगे। जी सर। लेकिन हमारा जो बातें हुई थी इन से, ये हो रहा कि कोई ऐसा टॉप क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब जो है ना बड़े अपना टेक्निकल टॉपिक आएगी, ज्यादा लॉ फॉर इधर तो कुछ नहीं आएगी। और ये अभी तो गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड नहीं किया कैसे क्वेश्चन पैटर्न रहेगी, वो भी शायद हम लोगों को बस। और एक चीज और बताया सर कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो लेगा वो एनआईएसएम लेगा, ऐसा सर बता रहा है। हाँ, मतलब कोई प्राइवेट बॉडी नहीं लेगा, वो गवर्नमेंट प्राइवेट बॉडी नहीं लेगा। वो बोले कि जैसे हम लोगों की यहाँ भी बात हुई थी जो आईबीबीआई में भी, तो आईबीबीआई के लिए भी एग्जाम कंडक्ट एनआईएसएम कंडक्ट करता है, ऐसा बताया सर। जी सर। ठीक है। और कोई फीडबैक दूसरे स्टेट से? एनी फीडबैक फ्रॉम अदर स्टेट्स? मैं जयपुर सीसीआईटी बात किया था, मैं पिछली बार भी बताया था सर, आपको ग्रुप में भी शेयर किया था। जयपुर सीसीआईटी में लंबा बातें हुआ मेरा, एंड वो भी सेम बातें उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, अभी थोड़ा रुक जाओ आप लोग, और एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर और सब जगह इशू होगा हेड ऑफिस से इनका, और अकॉर्डिंगली भी चालू होंगे। बस उन्होंने एक बात जरूर बताए थे कि साहब ऐसा है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन होगा, ऐसे उन्होंने बताया था। नहीं, ये तो जो फॉर्म भरने का तो मैं क्यों जो गया था, जो डीलिंग ऑफिसर है उनसे बात हुई थी, वो कहता ऑनलाइन भी भर सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो, बाय पर्सन ला सकते हो। तो हम तो बाय पोस्ट का फेवर में नहीं है, क्यों बाय पोस्ट में कोई पोस्टल मिस हो गई तो फिर कैरियर चौपट हो जाएगी। तो या तो मेल पे भेजो या फिर पर्सनल मिल के आओ, दोनों से। बाय पोस्ट तो कतई नहीं भेजो, क्योंकि बाय पोस्ट में क्या गारंटी वहाँ पहुँचे ना पहुँचे। तो इसलिए दो अल्टरनेटिव होगी, ये आपको जो अगले हफ्ते प्रिंसिपल से मुलाकात हो जाएगी, बाकी ऑफिसर से मुलाकात हो ही रही है, जो है कंक्लूडिंग आपको बता दीजिएगा। लेकिन बाय पोस्ट कतई नहीं भेजना, आप लोग ध्यान रखो, मेल पे या भी बाय पर्सनल। मैं तो सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट जितना 34 की वैल्यू और बिरादरी है भारतवर्ष में जगह पे, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, और बहुत
मतलब क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग बातें फैलाए जाते हैं, क्या पर्पस है क्या पर्पस नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी 40 मेंबर 37 मेंबर से जुड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो भी आपके पास एक्चुअल अपडेट्स है, बाकी लोगों से भी शेयर करें, उनके बीच में कोई भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश करें। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो ग्रुप्स में मेरा नंबर भी दे रखा हूँ, कई जगह बात, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाता है, दुबे जी बहुत टेंशन करता है, दुबे से बात नहीं करता हूँ मैं। जैसे दुबे जी अच्छा लड़का है, दुबे जी बहुत टेंशन करता है, संदीप दुबे की बात कर रहा हूँ मैं, वो टेंशन करता है, उसके मेरे में टेंशन कर देता है वो, ऐसा अच्छा लड़का है। बाकी एवरीबॉडी इज वेलकम, कॉल एनी टाइम, आपस में बात कीजिए और बिल्कुल भ्रमित मत होइए। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भ्रमित मत होइए, टेंशन मत कीजिए। एक छोटा सा लास्ट लैब बाकी है, जो कि एग्जाम क्लॉज, ठीक है, छोटा सा है, बाकी सब हो चुका है सर, कुछ नहीं बचा है अभी, यही चीज एक बचा हुआ है, जल्दी हम इसकी हल निकालेंगे सर। नहीं करना, कोई भी दोस्त है डिफरेंट ग्रुप में चल रहा है, किसी किसी की बातें हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इसको लेके बिल्कुल ही मत कीजिए। बाकी लोग जो आपके दोस्त है, उनको दिमाग में कोई अगर भ्रम है तो उनको भी भ्रम से उनको बताइएगा एग्जैक्ट स्थिति है क्या है क्या नहीं। और मैं दोबारा एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, इसके सेमिनार में कई लोग नहीं होंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अभी कई लोगों को दिमाग में बातें है कि 34 भी खत्म हो जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, दोबारा डिबेट क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दोबारा रिट्रोएट कर रहा हूँ फैक्ट्स को। पिछली बार मैं लंबा डिस्कशन किया था, फैक्ट एंड फिगर के साथ, लीगल डिस्कोर्स के साथ बात किया था, तो ये बात जरूर ये है, आप ध्यान रखिएगा, आफ्टर 1 अप्रैल जो लोग 514 में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो दो टाइप का रजिस्ट्रेशन का हकदार होंगे, एक सेक्शन 514, दूसरा 34AB, बोथ विल बी देयर, ठीक है। बाकी जिनके पास आईडी है तो है ही, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब दिस इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 34AB टू 514, दिस इज अनदर वेरी सेपरेट वर्टिकल, राइट सर। The 34AB is there, will be there till there is some government notification. Till then 34AB is still there. We are still 34AB valuer. जो लोग 514 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अच्छा से वो एक अलग से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो लोग IBBI करा लिया और करेंगे उनको एक तीसरा रजिस्ट्रेशन होगा। ये है आपकी तरीके से। थैंक यू सर। तो अगले महीने मेरे ख्याल इस पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो और अगर किसी का कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग विदा लेना चाह रहे हैं। और बाकी सिटी से भी मेंबर जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं तो उम्मीद करूंगा ना जो लोग जुड़े हैं और दूसरे सिटी से, वो भी तो कुछ बताए, अपने शहर का जानकारी तो दे कुछ। तो मेरे ख्याल में और किसी को कुछ कहना नहीं है, बट आई विल एक्सपेक्ट द मेंबर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम अदर सिटीज शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल समथिंग टू अस प्लीज, मेंबर फ्रॉम अदर सिटीज, otherwise we'll close the meeting today, and I'd like to request our officiating General Secretary Lalit Mishra for a vote of thanks. थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सभी मेंबर्स का मैं आईवा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि आप लोगों ने समय निकाला और मीटिंग में चर्चाएं की। धन्यवाद सर। अगली मीटिंग में हम सबके साथ मिलेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। Okay, thank you, good night. Thank you, thanks to all. Thank you. Good night. Good night. Thank you, Good night, good good night. night. Good night, everybody. Thank you.